Prime Minister Narendra Modi is in Assam today, and he delivered a strong message against illegal immigration and its impact on the northeast of India. He warned that infiltration is threatening the social fabric and demographic balance of the region, particularly hurting the tribal communities. The Prime Minister accused opposition parties, especially the Congress Party, of being responsible for allowing this infiltration and protecting those involved. He emphasized that the government is committed to safeguarding the country and has taken steps to return land to its rightful owners. PM Modi also cautioned that leaders who shield illegal immigrants will face consequences. सबसे बड़ा कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। Alongside that stern warning, PM Modi unveiled infrastructure projects and industrial projects worth over 18,500 crore rupees across Assam's Darang, Golaghat and Numaligarh areas. In Darang, the Prime Minister laid the foundation stone for a new medical college, nursing and GNM school aimed at boosting healthcare and education in the region. He also launched the Guwahati Ring Road project to ease congestion and improve urban mobility, and inaugurated the Kurwa Narengi Bridge over the Brahmaputra to enhance regional connectivity. Later at Numaligarh, PM Modi inaugurated a 5,000 crore rupee bamboo-based ethanol plant, marking a step towards sustainable energy. He also laid the foundation stone for a 7,230 crore rupee petrochemical unit to strengthen the plastic manufacturing industry in the northeast. The Prime Minister also paid tributes to legendary Assamese singer Bhupen Hazarika during his centenary celebrations last evening, condemning the Congress Party for mocking the Bharat Ratna award given to the national icon. Highlighting Assam's impressive 13% growth, Modi praised the construction of 6 new bridges over the Brahmaputra in the recent years, doubling what was achieved in the previous 60 years. And he reaffirmed the vision of building a Viksit Bharat or developed India. Also in his address to the people, the Prime Minister mentioned that this was his first visit to the state after the India-Pakistan conflict, which broke out following the devastating Pahalgam terror attack. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से
ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। असम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और असम का तेज विकास, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपीजी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए, ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो, उनसे चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई उसको तकलीफ हो रही है, भाई मैंने प्रणाम, मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं।